So, Jai Shri Krishna students, good morning. As I promised yesterday, we can't waste our lecture time about extra instruction. Okay. So students were asking me about what is applied and what is clinical significance. So first of all, you should understand the exam passing strategy. Okay. So what is most common mistake? Almost all students do. Ready? Yes. So students do everything but don't prepare for judgment day, and they don't actually know that what is being tested here. Okay. So I will cover this, the final judgment day preparation at last, but some other things I want to say first. Okay. So I want to say you balance all the subject. Okay. Because very smart students whom teacher expected to be university ranker, they did very well in anatomy, but by 1 or 2 marks they will fail in physiology or biochemistry. Okay. So first thing you should do, even before purchasing the textbook, contact your just seniors and collect 5-year university question paper. Okay. Why? Because now we are learning the competency based MBBS curriculum. So what the university paper actually do? They covers most of the must do learning. Okay. You must know. So actually you are focusing on core competency. Okay. Now be in touch with your just senior always. So whenever your routine will start, okay. So you say that I don't have time to go sleep and everything. My schedule is very tight, but you have always the spot. You can use your breakfast and lunch time where everyone is sitting. Okay, like your just seniors also there. The interns are also there. Okay. So you can what you do, you just be in your group. Okay, in your 5 to 6 group. Don't do that. You go and meet various seniors. Use the breakfast and lunch time for guidance. Okay. Always keep asking their exam experience कि आपको दीदी फिजियोलॉजी में क्या पूछा था, सर आपको क्या पूछा था, काइंड ऑफ थिंग. इवन इन कैंटीन व्हेन यू आर मीटिंग सम सीनियर यू कैन ऑलवेज आस्क कि आपका बायोकेमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस बताइए. So always you will get some useful tips and you will have interaction as well. Okay. Like just by this method, I always in lunch I always sat with my seniors rather than my friends. Okay. So what happened? I always got some tips. Like my surgery teacher specifically, his favorite question was define ulcer. So uh, ulcer was my case in a surgery and university practical. I got good marks. Same here. Our ENT teacher was very irritated by one point when we include tonsil in oral cavity examination. Okay. So when you will refer the Vikas Sinha or other ENT practical book in the third first, you'll come to know that the oral cavity examination ends with an anterior pillar. Okay. So this kind of tips give you the edge, give you the advantage. So you will do good in practical as well in Viva also. Okay. Now the judgment day. So what is being tested? So you think your knowledge is being tested? Might be, but in which manner? That is important. So now you have to understand this tank, tap and glass concept. Okay, so pardon my figure is if it is not very well. Ready? So this is a tank. So what it is actually? So your knowledge tank, okay? Your knowledge tank of anatomy, physiology and bio, all 3 subjects. Okay, and you keep filling it entire year by reading textbook or watching video. Okay, by learning classes and every manner you can, you keep filling this tank. Okay, right? And what do you think? I need to fill my tank. I need to fill my tank. मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा. अगर मैंने और टेक्स्ट बुक पढ़ ली, जितना मेरा टैंक होगा filled up, I will get good marks. But what I want to say is you focus on your exam. What your exam is actually. In your exam, you are giving theory paper. Okay. And in practical, you are doing the demonstration
which is a kinetic. Okay, you are palpating the skin, palpating the liver, so they are all actions. Like a movie, it's action, so it is a kinetic assessment. And after doing the kinetic actions, you are doing a verbal, you are giving verbal viva. So examiner asks you question and you are giving viva. Ready? So if I say your true skill is being tested, okay, ready? So this is a small tap here, okay, and this is your mark. Okay, you are filling up this pot. रेडी? किसी का फिल होगा 50%, किसी का फिल हो जाएगा तो उसको मिलेगा 80%, तो उसका रैंक आ जाएगा. सो यू ट्राई फॉर मिनिमम 50%. और रैंकर लोग का क्या होता है कि उसके 50 के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा भर जाता है, तो इट बिटवीन 80%. तो हो सकता है कि आपकी टंकी में 1000 लीटर पानी है, आपने बहुत पढ़ा है, आपने मेहनत की है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन इधर ग्लास में तो सिर्फ 100 ml पानी ही है. ओके, तो किसी का 50% भरता है, किसी का 80 ml भरता है. तो किसी का पानी कम, किसी का पानी ज्यादा, क्यों? इट डिपेंड्स ऑन द टैप. राइट? ओके, क्यों? टैप इज अ टाइम बाउंड मैनर एग्जामिनेशन. ओके, टैप इज व्हाट? योर असेसमेंट. जो टीचर आपका करता है वो असेसमेंट. टाइम बाउंड मैनर. टाइम बाउंड मैनर यानी, मैं ये इरेज करती हूँ अभी, ठीक है, ताकि मैं आपको और इसके बारे में समझा सकूं. ओके, टाइम बाउंड मैनर यानी कैसा? 3 घंटे में आपको पूरे साल जो पढ़ा है, जो आपका नॉलेज है, उसमें से आपको 3 घंटे में कंसाइज मैनर में सारा कुछ कवर करते हुए लिखना है. रेडी? ओके, सो और 30 सेकंड के अंदर आपको वाइवा में वर्बल बोलना है. सो यू हैव 3 आवर्स का थियरी राइटिंग पेपर. ओके, 3 आवर्स का थियरी राइटिंग पेपर एंड वाइवा, है ना. आप काइनेटिक मोशन करो क्लिनिकल में, चाहे या आप वाइवा दो थियरी का, आपका रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए. तो आपको जैसे पूछा कि डिफाइन डिफाइन फिजियोलॉजी, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, तो आपको 30 सेकंड्स के अंदर आपका बोलना चालू हो जाना चाहिए और आपको रिलेवेंट आंसर याद आना चाहिए. दैट विल बी योर रिकॉल. और अगर आपको कुछ मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्रोमेगाली एंड जाइजेंटिज्म, आपको पता है, लेकिन अगर आप 30 सेकंड के अंदर बोल नहीं पाए, then it is of no use. तो ये है आपका नल, है ना, बराबर. ये क्या है? ये चीज आपका नल है. ये चीज आपका क्या है? ये चीज आपका नल है, ठीक है. तो जिसका नल छोटा होगा, चाहे उसका टैंक में कितना पानी भरा हो, और जो जिसने इस चीज का प्रैक्टिस नहीं किया, जो ठीक से जवाब नहीं दे सकता, उसका नल सिकुड़ा है, तो उसके अच्छा सा ग्लास नहीं भरेगा. चाहे किसी का टंकी कम हो, उसने ज्यादा रीड नहीं किया, उसने 1000 लीटर पानी नहीं भरा, उसने सिर्फ 500 लीटर ही पानी भरा है, लेकिन उसका नल का मुंह बहुत अच्छा है. क्या? उसने अच्छे से थियरी राइटिंग का प्रैक्टिस किया है ना, सारे सारे आईएमपी क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस किया है. वो रोज अपने फ्रेंड्स के साथ कैच कैच खेलता है, वाइवा वाइवा खेलता है, ठीक है. तो उसका नल बड़ा है, तो उसका मार्क्स ज्यादा आएगा. तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि व्हाट इज बीइंग टेस्टेड, है ना. टेस्ट क्या हो रहा है एक्चुअली में? रेडी? योर नॉलेज, नो. योर स्किल्स, क्या 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 हो रहा है आपका? रेडी? योर रिकॉल एंड स्किल डेवलपमेंट का टेस्टिंग हो रहा है, आपको समझना चाहिए. ओके, आप जिंदगी में किसी भी एग्जाम में, आप चाहे एमसीक्यू एग्जाम दो, तो आपका नॉलेज चेक नहीं होता है. योर लॉजिक, रिग्रेशन एंड इन थियरी राइटिंग एंड इन वाइवा स्पीकिंग, हाउ मच यू नो डजंट मैटर इफ यू डोंट प्रैक्टिस दिस टू स्किल. कौन सा वाला स्किल? राइटिंग प्रैक्टिस. अभी सब क्या बोलेंगे? हाय, मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मेरे को मेरी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है. इट इज नथिंग टू डू विथ स्पीड, नथिंग टू डू विथ द ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग. इट्स ऑल अबाउट कवरिंग मैक्सिमम हेडिंग्स. जैसे कि मैं बोलूं कि अगर आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लिख रहे हैं, तो आपने डेफिनेशन हेड कवर किया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कवर किया, आपने ड्राइंग दौरा, ठीक है, फिर आपने सारे छोटे छोटे हेडिंग्स भी कवर किए. ऐसे मिला के आपके 10 हेडिंग कवर हो गए, और लास्ट में आपने अप्लाई या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी लिखा विथ लेटेस्ट ड्रग, और आपने एक पेज में सारा कुछ लिख दिया है, यू विल गेट गुड मार्क्स. पर इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, है ना. और टेक्स्ट बुक में देख के एक्स्ट्रा हेडिंग और पॉइंट वहां पे डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार आता है. दूसरे बंदे ने क्या किया? उसने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन 5 बुक में से पढ़ा, उसका नॉलेज बहुत डीप है,
वो माइक्रो मोलिकुलर लेवल का भी आंसर कर सकता है, लेकिन एग्जाम में अगर वो सारा नॉलेज वो 7 मिनट के अंदर, शॉर्ट नोट है ना, अगर वो शॉर्ट नोट है तो 7 मिनट के अंदर वो नहीं लिख पाया, फुल क्वेश्चन है तो 15 मिनट के अंदर नहीं लिख पाया, तो चाहे उसने 40 घंटे का पढ़ाई किया है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट इज वेस्टेड, वो व्यर्थ है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, अभी मैं आपको जैसे एग्जांपल देती हूँ कि चलो आपको पूछा थायराइड, है ना, फुल क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन 2, वहां पे एंडोक्राइन का क्वेश्चन आता है फिजियोलॉजी में, और ऐसे दिया है कि राइट इन डिटेल अबाउट थायराइड हार्मोन। अभी आपने अच्छे से प्लानिंग नहीं किया था लिखने का, और आपके पास लास्ट के 2 ही मिनट हैं, और आप क्या लिख के आएंगे, आप लिख के आएंगे थायराइड इज अ शील्ड शेप ऑर्गन। क्यों? क्योंकि हर बार एनाटॉमी में वही पढ़ते हैं तो सबसे पहले वही याद आता है, कोई मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रिपेयर एवरी क्वेश्चन कि आप उसको 2 मिनट में कैसे लिखेंगे। अभी उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डालूंगी, चाहे तो मैं वापस उसका दूसरी बार बनाऊंगी, बट यहाँ पे इतना ज्यादा मैं उसको कवर नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस कि हाउ टू राइट अ शॉर्ट नोट एंड अ फुल क्वेश्चन इन अ स्पेसिफिक टाइम, ये एक अलग से इसका पूरा वीडियो। ओके, ठीक है। दूसरा, नाउ अबाउट वाइवा, वाइवा स्पीकिंग, प्ले कैच कैच एवरीडे। तो उसके लिए मेरे पुराने वीडियो में एक लिंक है कि मेरा वाइवा अच्छा क्यों नहीं जाता है ना, मेरा वाइवा अच्छा क्यों नहीं जाता, क्योंकि आपने इसका पूरे साल प्रैक्टिस नहीं किया है। आपने क्या करा, टंकी भरी और सारा कुछ दिमाग में है, और दिमाग में से वो पतली सी नली से इधर मुंह से निकलना चाहिए ना, वो सर्किट बनती है। अगर आपने अपने फ्रेंड्स के आगे सार्कोमियर का डेफिनेशन 5 बार नहीं बोला है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डेफिनेशन नहीं बोला है, तो वो नहीं आएगा। और कैसा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आने चाहिए, है ना। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अभी मुझे सुबह के नाश्ते के टाइम मेरे को कोई आएगा और बोलेगा कि डिफाइन फिजियोलॉजी, फिर भी आपको बोलना पड़ा, तो दैट इज अ सर्किट डेवलपमेंट। अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आया, सुना, दिमाग ने पीछे से कहीं से छोटा सा इंफॉर्मेशन निकाला, ठीक है, फिर वो ब्रोकाज एरिया में गया, लिप्स और मुंह एवरीथिंग स्टार्टेड मूविंग, वो सारा सर्किट है। वो सर्किट जितना अच्छा डेवलप होगा उतना अच्छा आपका वाइवा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास बोले मेरे पास टाइम नहीं है, यू हैव लॉट ऑफ टाइम इफ यू डू टाइम मैनेजमेंट। आप कहाँ कहाँ वाइवा का प्रैक्टिस कर सकते हैं, चलो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, अगर आप हॉस्टल में हैं तो आपका रूममेट या आपके दोस्त, और अगर आप घर पे हैं तो आपकी मम्मी को बुक दे दीजिए, है ना, योर मम्मी, या आपका भाई बहन जो भी फ्री है वो आपका साथीदार या आपका पार्टनर हो गया। कैच कैच में पार्टनर क्या करेगा, बॉल फेंकेगा, आपको कैच करना है, तो पार्टनर कहीं से भी कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी पेज से, यू हैव टू आंसर कैसे भी चाहे, है ना। शर्त एक ही है, 30 सेकंड में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 30 सेकंड में अंदर आपको कुछ भी आंसर करना है। रेडी, तो ऐसा आपको रोज 5 मिनट का प्रैक्टिस करना है। टाइम कब मिलेगा, ब्रेकफास्ट के टाइम मिल सकता है, लंच के टाइम मिल सकता है, व्हेन यू आर गोइंग ऑन वॉक तब टाइम मिल सकता है। ठीक है, जब आप कॉलेज से हॉस्टल में चल के जा रहे हैं तब 5 मिनट मिल जाते हैं आराम से, जब टीचर नहीं आया है क्लासरूम में आप बतिया रहे हैं तब 5 मिनट मिल जाता है। ठीक है, सो इट्स ओनली मैटर ऑफ 5 डे एवरी डे, देन यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर वाइवा। पर आप देखिए वो कितना टाइम है। अगर आपको कोई भी न्यू स्किल सीखनी है ना, न्यू स्किल, तो इट्स अ मैटर ऑफ ओनली, इट्स अ मैटर ऑफ ओनली कितने 100 आवर्स, 100 आवर्स में आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो वाइवा में अच्छा बोलना, दैट इज ऑल्सो अ न्यू स्किल, है ना, आपको इंग्लिश में बोलना है। सो अगर आपने 365 डे एवरी डे यू गिव 5 मिनट्स, देन यू आर गिविंग टोटली इतना सारा मिनट्स। ओके, एंड डिवाइड बाय, है ना, 60, तो डेफिनेटली it is a sum amount. Okay, it is a sum amount, so your skill will be developed for viva, है ना। रेडी, तो 50 आवर्स का प्रैक्टिस तो आपका यहीं पे हो रहा है। तो अगर 50 आवर्स का आपने वाइवा स्पीकिंग का प्रैक्टिस किया कैच कैच, इट इज अ रियली गुड थिंग।